آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں ایسے کون سے 10 ممالک ہیں جو سخت ترین قوانین کے حساب سے جانے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی عوام کو تعلیم بھی حاصل نہیں کرنے دیتے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ہماری عوام میں شعور آ گیا، اگر انہوں نے تعلیم حاصل کر لی تو ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں رافع الرٹس۔ آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کے سخت ترین 10 ممالک کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ 10 countries with the most strict laws in the world۔ دنیا میں سب سے سخت قوانین والے 10 ممالک۔ نمبر 10، ایکواٹوریل گینیا۔ دوستو آپ نے ایکواٹوریل گینیا نامی اس ملک کا شاید کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ ملک دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں کی حکومت ہی کھلے عام ایجوکیشن یعنی کہ تعلیم کے خلاف ہے اور عوام کو تعلیم سے دور بھگاتی ہے۔ یہاں پر پڑھنا اور لکھنا ایک جرم سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہاں کی حکومت کو ڈر ہے کہ جو پڑھ لکھ جاتا ہے وہ حکومت کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں ایک ٹورسٹ یعنی کہ سیاح کے طور پر جائیں گے تو آپ کو کوئی بک شاپس یا پھر کوئی نیوز سٹینڈز نظر نہیں آئیں گے۔ اس ملک میں سیاحت کا شعبہ بالکل ختم ہو چکا ہے کیونکہ باہر کے افراد کو یہاں پر گھسنے ہی نہیں دیا جاتا۔ ملک کے پریزیڈنٹ تیوڈورو اوبانگ نیوگوما نے سال 1973 میں اپنی فوج کے ساتھ اس ملک پر قبضہ کر لیا تھا اور وہ آج بھی اپنی فوج کی مدد سے ہی اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں۔ یہاں کی حکومت ٹی وی، ریڈیو، انٹرنیٹ اور نیوز چینلز پر کڑی نظر رکھتی ہے۔ غیر ملکی سیاحوں کو ملک میں داخل ہونے پر سختی سے مانیٹر کیا جاتا ہے اور ان پر پابندی ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسا سین نہ فلما سکیں جس میں ملک کی غربت دکھائی دے۔ نمبر 9، ایران۔ دوستو ایران ایک ایسا ملک ہے جہاں پر انتہائی سختی کے ساتھ اسلامی شریعت کو نافذ کیا گیا ہے۔ عام طور پر ایک حکومت کسی فلسفے پر چلائی جاتی ہے مگر یہاں پر ریلیجن یعنی کہ مذہب کے نام پر پورا ملک چلتا ہے۔ تقریباً تمام اسلامی ممالک کی طرح یہاں پر مذہب کی بہت سختی بھی ہے جس کی وجہ سے شخصی آزادی اور فریڈم بہت کم ہو گئی ہے۔ مگر ایران کے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ مذہب کے نام پر بنائے گئے تمام قوانین غریبوں کے لیے اور مڈل کلاس کے لیے ہیں، جبکہ جو امیر ہیں ایران میں اور جو پاورفل لوگ ہیں ان پر یہ تمام قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ ایران میں حکومت کے خلاف بولنا بہت ہی خطرے میں ڈال سکتا ہے اور حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو سخت سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا مثلا فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور یوٹیوب بھی یہاں پر بین ہے اور ان کا استعمال بھی آپ کو جیل میں بھیج سکتا ہے اور یہ بات بہت ہی حیران کن ہے۔ اور اگر آپ کو آج پہلی دفعہ معلوم پڑا ہے کہ ایران میں سوشل میڈیا اس قدر بین ہے تو آج کی ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں۔ ایران میں مردوں اور عورتوں کی پرسنل لائف پر خاص طور پر بہت زیادہ پابندی ہے جس کے خلاف پوری دنیا میں اکثر آواز اٹھائی جاتی ہے۔ یہاں پر صرف اسلامی قسم کے ہیئر سٹائلز رکھنے کی اجازت ہے اور مردوں کو عورتوں کی طرح لمبے بال رکھنے پر سخت پابندی ہے۔ سر سے لے کے پاؤں تک حجاب لیے بغیر یہاں کی خواتین گھر سے باہر نہیں نکل سکتی اور نہ ہی جینز پینٹس پہن سکتی ہیں۔ عورتوں اور لڑکیوں پر پردے کی پابندی خاص طور پر بہت زیادہ سختی سے کرائی جاتی ہے۔ جیز، راک اور ریپ کی طرح کے مغربی میوزک پر بھی سختی سے پابندی ہے۔ ایران میں شراب پینے پر بھی سختی سے پابندی ہے اور انسان چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم وہ ایران میں شراب نہیں پی سکتا۔ نمبر 8، سیریا یعنی کہ شام۔ دوستو پچھلے 10 سالوں میں مسلسل جنگوں کی وجہ سے ملک شام میں ہر طرح کا تشدد بہت بڑھ چکا ہے۔ حکومت اور یہاں کے باغیوں کے درمیان جنگ کی وجہ سے یہاں کی عام عوام کا برا حال ہے۔ حکومت کے خلاف کاموں کو ختم کرنے اور کنٹرول کرنے کے لیے شام کی حکومت نے پورے ہی ملک میں ایک کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کر رکھا ہے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ اور دوسرے ذرائع مواصلات رکے رہتے ہیں۔ موبائل اور ٹیلی فون کا استعمال بہت ہی کم رہتا ہے اور غیر ملکی صحافیوں کو ملک میں گھسنے ہی نہیں دیا جاتا۔ نیوز چینلز کو یہاں کی حکومت اچھی طرح مانیٹر کرتی ہے اور شام کے وہ صحافی جو کہ حکومت کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے کی بے وقوفی کرتے ہیں وہ اپنے گھروں سے اٹھا کر ٹارچر کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے۔ اور ویسے یہی سلسلہ ہمیں اب پاکستان میں بھی نظر آنا شروع ہو چکا ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ شام میں ان میں سے بہت سے صحافیوں کو مار بھی دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، سعودی عربیہ۔ دوستو وقت کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ بھی اب تیزی سے بدل رہا ہے اور ماڈرنزم کی طرف جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ ملک آج کے دور میں بھی مذہب اور روایات کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی سخت ہے۔ محمد بن سلمان ایک جدید ذہن کے انسان اور سعودی حکمران ہیں جو کہ اپنے ملک کو دنیا کے ساتھ ساتھ چلتے دیکھنا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی آج ہمارے اس برادر اسلامی ملک میں تمام افراد خاص طور پر خواتین کی پرسنل فریڈم پر کافی پابندیاں ہیں۔ آج گورنمنٹ کی طرف سے سعودیہ میں عورتوں کو گاڑی چلانے کی اجازت تو
मिल गई है, लेकिन सऊदी मुआशरे में अभी इसे पूरी तरह से कबूल नहीं किया गया। इसी तरह यहाँ पर खवातीन पर पर्दा भी वाजिब है और इस असूल की सख्ती से पाबंदी भी कराई जाती है। इसके अलावा सऊदी अरब दुनिया के चंद ममालिक में से एक है जहाँ पर आज भी सजाए मौत दी जाती है और लोगों की गर्दन भी काट दी जाती है। यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस भी सिर्फ कुछ ही जगहों पर मौजूद है और हुकूमत ने मीडिया न्यूज चैनल पर भी पाबंदी लगा के रखी हुई है और खूब नजरसानी के बाद ही खबरें नशर होने दी जाती हैं। सऊदी अरेबिया सहाफियों पर पाबंदी लगाने में आज भी बहुत आगे है और हुकूमत पर तनकीद करने पर बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट को न सिर्फ नौकरी से निकाला जा चुका है बल्कि इनको घरों से भी उठा लिया गया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जमाल खशोगी थे, जो कि सऊदीया से भागने में तो कामयाब हो गए मगर इन्हें तुर्की में मौजूद सऊदी एम्बेसी में पकड़कर इबरत का निशान बना दिया गया। सऊदी अरब में भी तमाम कवानीन ईरान की तरह ज्यादातर गरीबों पे ही लगते हुए नजर आते हैं, जबकि अमीरों को ऐसा लगता है जैसे कि इन तमाम कवानीन से इस्तिस्ना हासिल है। नंबर 6, चाइना। दोस्तों, चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त और बड़ा भाई मुल्क है जिसने हर अच्छे और बुरे वक्त में हमारी मदद की है और हमें हर सूरत सहारा भी दिया है। चीन की मईशत दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है जिसने पिछले 20 सालों में बहुत ज्यादा तरक्की की है। चीन में भी हुकूमत का कंट्रोल बहुत सख्त है और हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों पर सख्ती से कार्रवाई भी की जाती है। खास तौर पर चाइनीज यूथ के दिलों में मगरबी बातें डालना एक जुर्म समझा जाता है। मीडिया और इंटरनेट को कंट्रोल किया जाता है और बगावत, तब्दीली और मजहब से मुतालिक बात करने पर यहाँ पर सख्ती से पाबंदी है। चीन में मौजूद मुसलमानों की भी हालत भी अच्छी नहीं, क्योंकि वो वहाँ पर एक माइनॉरिटी यानी कि अकलियत समझे जाते हैं। चीन में मुसलमानों को मजहबी आजादी बिल्कुल भी हासिल नहीं और अब तो इन पर क्रैक डाउन शुरू हो चुका है, जिसके बारे में कोई मुसलमान मुल्क अब तक आवाज नहीं उठा रहा। नंबर 5, जापान। दोस्तों, दुनिया के सबसे सख्त कवानीन वाले ममालिक की लिस्ट में 5वें नंबर पर जापान आता है। जापान में आज से बहुत अरसा पहले तक एक फ्यूडल सिस्टम था जिसके तहत यहाँ पर जागीरदारी अरूज पर थी और हालांकि ये मुल्क आज दुनिया का सबसे जदीद मुल्क कहलाया जाता है, मगर आज के जदीद जापानीज गवर्नमेंट सिस्टम में भी पुराने सिस्टम की झलक नजर आती है। जापान में काम करने के कवानीन भी बहुत ज्यादा सख्त हैं और शायद यही इनकी तरक्की का राज भी है। कंपनी के CEO से लेकर एक जूनियर स्टाफ तक हर किसी से तवक्को की जाती है कि वो अपने काम में कामयाबी हासिल करेंगे और जो कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता इसको सजा मिलती है। चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हो या फिर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम, इनके बारे में बातचीत करने पर सख्ती से पाबंदी है। जापान में आज भी आपको स्कूल, ऑफिस, वर्क प्लेस और घर में अपने बुजुर्गों के सामने इसी तरह झुककर सलाम करना पड़ता है जैसे कि किसी कंग फू मूवी में शागिर्द अपने मास्टर के सामने अदब से झुकता है। जापान में बहुत सी दवाएं भी पूरी तरह से बैन हैं और इसलिए अगर आप कभी भी जापान का दौरा करें तो अपनी मेडिसिन रिसर्च करके खुद साथ लेकर जाएं। नंबर 4, सिंगापुर। दोस्तों, सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जहां पर आपको छोटी सी बात पर एक बड़ा फाइन यानी कि जुर्माना हो सकता है। पब्लिक प्लेसेस में थूकने और सिगरेट पीने पर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। घर से बाहर निकलते वक्त अगर आप गलत किस्म का ड्रेस पहनेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है और ये सब छोटे मोटे कवानीन हैं। आप अंदाजा लगाएं कि अगर आप कत्ल या फिर मनशियात फरोशी के जुर्म में पकड़े गए तो फिर आपको क्या सजा मिलेगी। यहाँ पर एक छोटी सी गलती और बेवकूफी आपको सजाए मौत तक पहुँचा देती है। सिंगापुर में इतनी सख्ती के साथ अपने असूलों पर पाबंदी करवाई जाती है और यही वजह है कि आज दुनिया के जदीद तरीन ममालिक में सिंगापुर सहरे फहरिस्त भी है और यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यूरोप के तकरीबन तमाम जदीद ममालिक से बेहतर भी है। इस मुल्क में च्युइंग गम चबाना और अपने पास रखना भी एक जुर्म है। सिंगापुर में ट्रैफिक के लॉज भी बहुत ज्यादा सख्त हैं और गलत जगह से सड़क पार करने पर आपको फाइन भी हो सकता है। इस जदीद दौर में भी आज भी यहाँ पर दुनिया के सामने आपको कोड़े मारने का रिवाज भी मौजूद है। नंबर 3, एरिट्रिया। दोस्तों, दुनिया के सबसे सख्त कवानीन वाले ममालिक में नंबर 3 पे एरिट्रिया आता है, जिसका नाम शायद आपने आज तक सुना भी नहीं होगा। एरिट्रिया अफ्रीका में मौजूद एक छोटा सा मुल्क है और यहाँ पर पिछले 30 सालों से एक ही आदमी प्रेसिडेंट इसाइयास अफवर्की ने हुकूमत की है। सदर साहब और इनकी हुकूमत पूरे मुल्क और इसकी हुकूमत और मीडिया को न सिर्फ कंट्रोल करते हैं बल्कि सेंसर भी करते हैं और यहाँ पर सदर ही फैसला करता है कि किस न्यूज चैनल पर कौन सी खबर आएगी। प्रेसिडेंट ऑफिस से इजाजत लिए बगैर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा जा सकता और न ही कोई खबर नशर की जा सकती है। यहाँ पर तमाम मज़ाहिब पर कड़ी नजर रखी जाती है और मसाजिद में जाकर नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं है। अपने मजहब की खुली आजादी के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आपको पहले हुकूमत को बताना पड़ेगा कि आपका ताल्लुक किस मजहब और किस फिरके से है। इसके बाद जब हुकूमत आपको इजाजत देगी तभी आप अपने मजहब को फॉलो कर सकेंगे।
नंबर 2, क्यूबा। दोस्तों आपने शेख रशीद के हाथ में बड़े बड़े सिगार तो देखे होंगे जो कि क्यूबन सिगार्स होते हैं। ये क्यूबन सिगार इसी खूबसूरत मुल्क से आते हैं और ये बात भी सच्ची है कि ये मुल्क आज दुनिया की बेहतरीन हनीमून डेस्टिनेशंस में से भी एक है। नॉर्थ कोरिया की तरह क्यूबा भी एक कम्युनिस्ट मुल्क है जहाँ सब कुछ ही हुकूमत के कंट्रोल में है। यहाँ पर हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों को सख्त तरीन सजा दी जाती है और तमाम न्यूज चैनल्स को हुकूमत ही कंट्रोल करती है। इसके अलावा हुकूमत बाकायदगी से आपके सोशल मीडिया और सर्च हिस्ट्री को भी तसल्ली के साथ छांटी करती है कि जो कोई भी हुकूमत के खिलाफ अपने ख्यालात का इजहार किसी भी सूरत में लिखता हुआ या बोलता हुआ करता हुआ पाया गया, इसको काफी अरसे के लिए जेल की हवा भी खानी पड़ती है। नंबर 1, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों नॉर्थ कोरिया आज दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत और पर्सनल फ्रीडम यानी कि शख्सी आजादी शायद नाम की भी नहीं है। ये एक इंतहाई सख्त कवानीन वाला कम्युनिस्ट मुल्क है जहाँ सभी कुछ हुकूमत की मर्जी से चलता है और किसी आम इंसान को रत्ती बराबर शख्सी आजादी हासिल नहीं है। यहाँ पर आज भी अमेरिका और साउथ कोरिया के लोगों को आने की इजाजत नहीं है और किसी भी मुल्क के लोग अगर टूरिस्ट यानी कि सयाह के तौर पर आते हैं तो इनकी हुकूमत के लोग अपनी निगरानी में ही इन सयाहों को घुमाते हैं और अकेले नहीं छोड़ सकते। इन हुकूमती अफराद को माइंडर्स कहते हैं और आप जितनी देर इस मुल्क में रहेंगे ये एक एक लम्हा आपके साथ रहेंगे ताकि आप कोई भी असूल ना तोड़ें और ना ही यहाँ की हुकूमत के बारे में कुछ बोल सकें। नॉर्थ कोरिया का पूरा मुल्क ही यहाँ के हुक्मरान किम जोंग यूंग के घर की बकरी है। टीवी, रेडियो, प्रिंट और इंटरनेट सभी कुछ यहाँ की हुकूमत और बादशाह की मर्जी से होता है। खबरों पर सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया की मर्जी से ही पाबंदी लगाई जाती है। सिर्फ यहाँ के रूलिंग एलीट यानी कि अमीर ज़ादों को इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर है और यहाँ की सीक्रेट सर्विस बादशाह के अलावा हर किसी की ऑनलाइन एक्टिविटी को चेक करती रहती है कि कहीं कोई नॉर्थ कोरिया और इसके बादशाह के खिलाफ कुछ वक्त तो नहीं रहा। आम आवाम की नकलो हरकत पे भी कड़ी नजर रखी जाती है और बगैर वजह के कोई भी पार्कों में टहल नहीं सकता। नॉन मैरिड कपल्स एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते यानी कि बिना शादी के कोई लड़का लड़की एक दूसरे के साथ नहीं रह सकता और इस काम के लिए हुकूमत ने एक खास डेटिंग पुलिस भी बना रखी है। नॉर्थ कोरिया ने बहुत से सख्त फैशन लॉज भी बना रखे हैं जिसके मुताबिक औरतों को जीन्स पैंट पहनने की इजाजत नहीं है जबकि मर्दों को लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं है। जो कोई भी इंसान इन गोल्डन असूलों को तोड़ता हुआ मिलता है इसको एक खास अरसा फोर्स्ड लेबर यानी के जबरदस्ती मुशक्कत के काम की सजा दी जाती है। इन तमाम असूलों की वजह से ये मुल्क अपनी ही आवाम के लिए आज जहन्नुम बन चुका है और दुनिया के सबसे सख्त कवानीन आपको नॉर्थ कोरिया में ही मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 ममालिक जहाँ पर आपको दुनिया के सबसे सख्त कवानीन मिलते हैं। मजीद जबरदस्त अगर आपको हमारी आज की छोटी सी रिएक्शन वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। अस्सलाम वालेकुम।